people, welcome back to Ball and Banter. Today we are stepping off the pitch. I think usually हम लोग match reactions करते हैं. We talk about what's happened on the field of cricket, on the field of football. But today we are doing something different, right? I think आज का जो episode है for all you fitness enthusiasts, people who want to understand how elite athletes prepare themselves for the big matches. What is the secret sauce that helps them sort of succeed at their game? I think it'll be very interesting for people to understand that today. एंड वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट टुडे. अंगद भाई, थोड़ा बता सकते हो हमारे ऑडियंस को हमारे स्पेशल गेस्ट के बारे में? Bhai, of course. And we've got to start with some name dropping, I think. So, Let's go. Suraj with us today, Suraj Thakuria. And he's the man who's helping some of the most elite cricketers in our country succeed on the pitch and take their game to new heights. And some of these cricketers, correct me if I'm wrong, Suraj, इसमें से कोई गलत नाम दे दिया ना फिर I think बात कोई complain कर देगा. But the ones that we know of are Venkatesh Iyer, Avesh Khan, Nitish Reddy, Ishan Right. Sharma, Yeah. Varun Chakravarti, and I think किसी ने मुझे बोला था वो the 13-year-old prodigy जो अभी आई Vaibhav Suryavanshi, yeah. Vaibhav Suryavanshi, he's also there. Anyone we've missed? Any new name you'd like to add? You've missed many of them. You've missed Khalil Ahmed, actually. He's a Oh really yeah, how can you left-arm forget bowler. Khalil? Yeah. Yeah. And there is Arshad Khan is going to play for GT. Then Kumar Karthike, who was in Mumbai, right now is in Rajasthan. And there are many players. I mean, Shashank Singh, great talent. Punjab, Kings Eleven Punjab. Ashutosh Sharma, again Kings Eleven Punjab. Now he's in, I think, I'm not sure कौन सी team है. So I've worked with him. And I have worked for a very small period with Rajat Patidar also, जो इंदौर से ही belong करते हैं. Obviously a superstar of RCB now. But yeah, उनके साथ काफी कम टाइम काम किया है. मतलब एक टीम के साथ थे तब हमने काम किया for Mala Panthers. Apart from it, all the others names जो मैंने लिया, that was something I've been working with them maybe from past 2-3 years now. Yeah, Nitish Reddy has been there from past 6 months now. ईशान भाई is also same, but उनके अलावा सारे 3-4 साल 2-3 साल से तो है मेरे साथ at least. Amazing. And I mean, once again, welcome to the show. And we're so happy to have you. बहुत बातें करने आपके साथ. There's a lot that we want to learn and also the audience will learn. So we'll just dive right straight into it. And just to begin with, if you could just tell us what made you choose this as a career. You told me that you used to play cricket before and you've been very active yourself. Right. So was this your passion towards fitness and sports in general, or was there any other reason behind it? First of all, Angad, thank you so much for having me on the show. I'm really glad to be here today. And मैं थोड़ा सा भी अगर लोगों का perception change कर पाऊँ from what I know about fitness, it's going to be, like mission succeeded for me. There's a lot of misconceptions, but we'll definitely work on them today. So coming back to your question, कि कैसे I landed in this field. So basically, I've been an athlete maybe from my childhood. मतलब from the age of 8 or 9, I started playing cricket. I was playing for one of the clubs in Indore, and for good 8 to 10 years, मैंने क्रिकेट खेला. But that time I was very lean. Lean नहीं बोल सकता, मैं पतला था. मतलब बहुत लोग मजाक उड़ाते थे. And I was bullied for most of the times for my weight and for my height and all those stuff. और उस टाइम ना IPL आया ही था. And पहले तो क्या था ना कि डिफेंस ड्राइव ये सारे मेन शॉट्स होते थे कि अरे क्या डिफेंस है, अरे क्या ड्राइव है. But once the IPL came and everything was कि अरे छक्का मारना है, ये करना वो करना. और I felt कि मेरे पास पावर ही नहीं बॉस. मैंने लाइफ में मेरे क्रिकेटिंग करियर में जब तक मैं खेला मैंने शायद 2 या 3 छक्के मारे होंगे. तो इट वाज लाइक एट द एज ऑफ 18 आई अंडरस्टूड. थोड़ा लेट हो गया, बट एट द एज ऑफ 18 आई फेल्ट कि दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर मी बिकॉज आई वाज नॉट दैट ग्रेट इन क्रिकेट. जो मैं मानता हूँ, आई एक्सेप्टेड दैट मैं नहीं था इतना टैलेंटेड या व्हाटएवर इट वाज. आई वाज हार्ड वर्किंग, आई वाज नॉट टैलेंटेड, बट आई रियली वांटेड टू बी अराउंड दिस फील्ड. क्रिकेट जिसने खेला है या कोई भी स्पोर्ट जो खेलता है, वो एक अलग कनेक्शन रहता है और उसको ऐसा लगता है कि फॉर द होल लाइफ आई नीड टू बी अराउंड दिस सिनेरियो. कुछ भी हो जाए मुझे ये छोड़ना नहीं है. राइट. सो वही था कि देन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट फिटनेस कि मैं कैसे अपनी फिजिक पे काम कर सकता हूँ ताकि मैं ज्यादा प्रेजेंटेबल बन पाऊँ. एट द सेम टाइम हाउ कैन आई हेल्प पीपल अराउंड मी, और मैं कैसे क्रिकेट से जुड़ा हुआ रह सकता हूँ. पर ये स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से आया? मतलब डिड यू स्पीक टू अ फ्यू पीपल या इंटरनेट पे देखा या where did like how did that like thought come about कि maybe this is like a career path that I can right go so after? it's like it's all about. So one of my friend always used to tell me, और अभी भी बोलते हैं कि
it's all about having the right person at the right time at the right place, right? Mhm. तो वही वैसा ही कुछ हुआ मेरे साथ भी. I was not into, like मैंने कभी सोचा नहीं था कि I'm going to work with cricketers and all. I was just focusing on my fitness, कि मैं अपने आप को कैसे improve कर पाऊँ, मेरे को मेरे abs कैसे होना चाहिए, मेरा मसल मैं उसी में था. और उसके लिए that time YouTube was a source. मतलब Mhm. हम सब, मतलब जो भी फिटनेस फॉलो करता है उसका सबसे बड़ा नाम उनको पता ही है, गुरुमान का. हम मैं भी उनमें से ही था जो गुरुमान की वीडियोस देखता था. और आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम हिम. आफ्टर अ व्हाइल आई अंडरस्टूड कि क्या एक बेसिक होना चाहिए. देन आई थॉट कि बस दिस इज अ गुड फील्ड, एंड देयर आर वेरी लेस प्लेयर्स इन दिस फील्ड. सबको पता Mhm. है कि विराट कोहली का जो चेंज हुआ है इट्स बिकॉज ऑफ फिटनेस. बट वो फिटनेस में क्या क्या इंक्लूडेड है किसी को नहीं पता उस टाइम पर. लोगों को लगता था अच्छा जिम में जाकर ट्रेनिंग करूंगा मेरा फिटनेस हो जाएगा. बट तुम Yeah. जिम में कितनी भी ट्रेनिंग कर लो, इफ योर डाइट इज नॉट ऑन पॉइंट, कोई सेंस ही नहीं था किसी का. तो उस टाइम पे at the age of 18 I thought कि नहीं, let's shift. Like I was doing, like I enrolled myself for a BBA, e-commerce degree and all. But I thought I think I should go in this field, and I was lucky enough कि कभी भी पेरेंट्स ने किसी ने कुछ नहीं रोका मुझे, कभी भी क्रिकेट के लिए भी नहीं रोका. जो करना है करो, अपना ध्यान रखो, बस गलत आदत में नहीं पड़ना, बाकी जो करना है करो. सो आई स्टार्टेड लर्निंग, कुछ सर्टिफिकेशंस देखे ऑनलाइन, वो किया. फिर देयर वर फ्यू ऑफ माय सीनियर्स जो इस फील्ड में ऑलरेडी थे. फिटर करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पहले स्पोर्ट्स था, वो मैं उनके साथ था पहले, लॉन्ग बैक. तो उनसे Okay. मैंने बहुत कुछ सीखा, कुछ लोगों से वहां पे उन्होंने मुझे बताया कि बस ये सर्टिफिकेशन कर लो. तो मैंने बड़े बेसिक सर्टिफिकेशन से शुरू किया. देन आई थॉट सर्टिफिकेशन इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी, आई नीड टू हैव अ डिग्री, बिकॉज अगर इफ आई रियली वांट टू मेक इट बिग, I want to have degree. Then I started, like I went for the degree things and all those stuff. Right now also I'm doing my PhD in the same, for the in the nutrition field and all. So I will be a doctor soon. So Awesome. yeah, so uh, उस टाइम पे यही था कि अच्छा ये कोर्स कर लो, ये कर लो. फिर I started upgrading my knowledge. And one day, like Venki was a, like he was my classmate and he was a good friend of mine. He is a good friend of mine. तो I was training him. जब वो आईपीएल नहीं खेले तो उसके पहले भी उनका डाइट मैं ही देखता था बहुत टाइम से, बिकॉज आई वॉज हिज फ्रेंड. और ऐसे ही किया, तू बता दे क्या करना, तुझे पता है चीजों के बारे में. तो ऐसे ही हम डिस्कस करते थे, उनका डाइट मैं ही प्लान करता था. ही वॉज वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट. तो वन डे आई वॉज सिटिंग विद माई फ्रेंड्स, तो देर वॉज अ कॉल फ्रॉम आवेश खान. और आवेश खान उस टाइम तक अंडर 19 वर्ल्ड कप 2 बार खेल चुके थे. ही वॉज अ बिग नेम इन इंदौर, एन एमपी, बिकॉज ही वॉज विद आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स एट दैट टाइम. जब उनका मुझे मेरे पास कॉल आया, इनफैक्ट वो उस टाइम पे इंडिया के नेट बॉलर भी थे, Mhm. वो और अंकित राजपूत. तो आवेश कॉल्ड मी अप एंड मुझे बोला कि यार आई वांट योर हेल्प, आई एम आवेश खान, आई प्ले क्रिकेट. और मतलब भाई आपको सब जानते हैं, प्लीज बताओ आई कैन आई हेल्प यू आउट. तो फिर वहां से आवेश खान वाज माय फर्स्ट क्लाइंट. कि मैं उन्होंने मुझे बोला कि आई रियली वांट टू, आईपीएल इज कमिंग अप एंड आई रियली वांट टू गेट इन शेप अगेन. कुछ इंजरी था या कुछ था जिसकी वजह से उन्होंने थोड़ा वेट पुट ऑन कर लिया था. वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर. वो आईपीएल आवेश खान वाज आई थिंक सेकंड टॉप ऑन द बॉलर्स लिस्ट विकेट में. पहले हर्षल पटेल था फर्स्ट, और सेकंड आवेश खान थे. Yeah, yeah. 2021 आईपीएल. एंड उनका फिजिक ट्रांसफॉर्मेशन वाज नेक्स्ट लेवल, बिकॉज डेफिनेटली इज अ वेरी डेडिकेटेड एथलीट एंड ऑल. तो उनका जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तब वहां से थोड़ा सा मुझे पिक मिला. वहां पे आवेश ने मुझे रेफरेंस दिए कि अंकित राजपूत जो राजस्थान रॉयल्स, और वो भी बहुत क्रिकेट खेले. Mhm. अंकित राजपूत हैज बीन लेजेंड, अगर आप उनके स्टैट्स देखोगे तो. उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, वहां से अंकित राजपूत आया. एंड देन द चैनल्स कीप ऑन हैपनिंग, एंड धीरे 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 करके, बिकॉज ऑफ द सर्विसेज एंड द रिजल्ट्स, आई एम हियर एट, like I'm training more than 15 IPL players now. I'm working with 15 IPL players right now. I'm sure it's not easy as you made it sound like, but that's phenomenal. It's easy. I mean, you need to, like, see, it's all about passion. Nothing is easy, but easy Yeah. लगता है इसलिए because this is what I really wanted to do. I really wanted to be a cricketer. नहीं हो पाया, and this is the second thing. And this was the best decision of my life. कि being a nutrition, it's obviously a off field. It's not a mainstream or something. तो घर से सपोर्ट भी इजी मिला. किसी ने कुछ, मतलब फ्रेंड्स एंड ऑल, एवरीवन वाज वेरी सपोर्टिव. तो हो गया. It was very easy for me. And plus Pretty नाम के सामने interesting. अब तो Sorry. नाम के सामने अब तो डॉक्टर लग जाएगा, फिर everyone around also will say कोशिश वही है. I mean, PhD has been difficult, to be very honest. But yeah, I mean, maybe Right. 1 year and I will be through. होने वाला Coming है back खत्म to जल्दी. these players, right, Suraj, the ones that you're talking about. So, Mhm. see, मतलब mostly when you go to any person to consult for diet वगैरह,
they'll do these basic things कि तुम्हारे डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, maybe 2x in grams of your body weight, maybe when right, lifting right. weight, if you're not, then about your body weight, Hmm. number of carbs you need to put in, fruits and everything, good fiber in your diet, Hmm. and all of that, right? And काफी basic they tell you about it. What do these अंगद भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे लग रहा है कि यू आर आल्सो डूइंग सम कोर्स ऑन न्यूट्रिशन। क्या मेरा देखना, मेरा जॉब अरे खतरे में तो नहीं है? नहीं नहीं भाई, मैं I used to play cricket myself till the under 19 level. So had a good understanding from there, and like pretty much like you, I realized pretty soon that ये cricket वाला करियर तो नहीं चलने वाला, तो जाके पढ़ाई MBA करा, but still very passionate about it. So या hence प्लीज you प्लीज have कंटिन्यू। some basic understanding and want to learn more from you as well. So like I was saying, these players, I'm sure they also, to a great extent, when they are playing professionally, even at a very junior level, they know what to eat, what not to eat. But when they come to specialists like you in a very advanced stage of their career, where all eyeballs are on them, and there's pressure to even perform, and sort of, and cricket is that sport, right? Ki you have to grab your सही opportunities. डायनामिक, या Matter you get one, you get 10, you have to. So with these players coming with that kind of a pressure, वो क्या requirements के साथ आते हैं आपके पास? requirements are totally different from, like, it depends from player to player. If I talk about IPL players, उसमें भी बहुत, because see, when it comes to nutrition, you're talking about food. और food एक ऐसी चीज है ना, for everyone in the world, it brings happiness. Okay, it is related to happiness Yeah. in some or other way. ठीक है, तो अगर मैं उनका फूड को ही मैं डिफिकल्ट बना दूंगा, तो उनका एक जो इतना स्ट्रेस लेवल ऑलरेडी है उसमें और ऐड ऑन हो जाएगा। सो सबका काम करने का तरीका अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, if I talk about Avesh Khan, he is a fast bowler, right? And he's pure like rooted, उनका जो रूट है, he is from Indore, तो बहुत स्पाइसी और हमारे यहाँ बहुत देसी खाना रहता है, right? And Yeah. coming from a Muslim family, you can understand mutton and a lot of meats and all those stuff, right? So हमको ये देखना पड़ता है कि मैं कहाँ पे लाइन, मतलब उनका क्या एक्सपेक्टेशन, उनका एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कहाँ लाइन ड्रॉ करूंगा, उनको कितना फ्रीडम दूंगा, एट द सेम टाइम आई विल बी एबल टू provide them 100% energy and 100% strength which is required on the field. So we need to strike a balance, or that is the balance there. Like everyone knows, okay, I need to eat protein, I need to eat carbs, I need to have such amount of calories and all those stuff, at least at athlete level. But वो balance नहीं ढूंढ पाते हैं कि कैसे मैं अपने mental peace को maintain करते हुए डाइट करूँ। बिकॉज if you think about diet, हमेशा से यही बताया गया है कि डाइट बहुत डिफिकल्ट है। व्हेन यू सी विराट कोहली डूइंग अ डाइट, यू विल लाइक, यही दिमाग में आएगा कि अच्छा वो तो वीगन है, वो ये ऐसा खाता है वैसा खाता है, इतना हार्ड डाइट, इतना डिफिकल्ट डाइट। Yeah. अब बीइंग अ विराट कोहली, इट माइट बी इजी फॉर हिम, राइट? बट आवेश खान करने जाएगा वो चीज, तो वो उल्टा ही पड़ेगा उसके। सो व्हाट दे एक्सपेक्ट इज कि बॉस, आई डोंट वांट टू रूइन माय मेंटल पीस। मेरे पास वैसे ही ऑलरेडी 100 प्रेशर है, मेरे पास आईपीएल, मेरा इंडिया खेलने का प्रेशर है, फाइनेंस का प्रेशर है, एवरीथिंग इज देयर, लाइक सारा सब कुछ, सब इतने इतनी करोड़ों लोग उनको देख रहे हैं, राइट, थ्रू आईपीएल। तो उनका सिर्फ इतना सा लॉजिक है कि मुझे मेरा फूड का कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बट एट द सेम टाइम मुझे मेरे एफर्ट्स 100% रखना है फील्ड। आई वांट टू बी इंजरी फ्री, आई वांट टू फील ऑन टॉप ऑफ द गेम। मुझे ये होना चाहिए कि मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा हो फील्ड का, राइट? एंड वंस यू आर एट गुड एनर्जी लेवल्स, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। सो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स कम फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि मुझे मेरा मेंटल पीस नहीं करना है। फिर देर आर प्लेयर्स लाइक नीतीश रेड्डी, who he's a, I feel कि over the period is going to be like in kind of dieting thing, at least to विराट कोहली को रेप्लिकेट करेंगे, क्योंकि उनको फर्क ही नहीं पड़ता। आप उनको बॉइल्ड खाना भी खिला दोगे तो उनको फर्क नहीं, उनको है कि मैं भाई इंजरी नहीं होना, मुझे मुझे फील्ड पे पूरा 100% एफर्ट्स देना है। सबका यही रहेगा, राइट, कि इंजरी नहीं होना, 100% एफर्ट्स देना। बट सबका लेवल ऑफ, हाउ कैन आई से, ईटिंग फूड, और मतलब उनका जो recipes are going to be different, way of eating is going to be different, number of meals are going to be different. तो being a cricketer वैसे इतना सब लोड है, and they want to outsource the thing, पता उनको सब है, but they want to outsource कि मेरा ही टेंशन कर रहा मुझे, right? And you know, फिर कोई स्पेशल ऑलराउंडर्स वगैरह, नितिश रेड्डी अगेन इज ऑल राउंडर, राइट? तो इनका थोड़ा डिफरेंट रहता है कि वर्कलोड बहुत ज्यादा है, और मुझे जितना नॉलेज है उसमें मुझसे अभी तक 100% एफर्ट्स में पुट नहीं कर पा रहा हूँ, तो यू हेल्प मी। तो ऐसा यूजुअली उनकी प्रॉब्लम्स आती है। एंड सबकी बॉडी टाइप भी डिफरेंट होती है ना, लाइक यू मेंशन, जैसे आई हैड द सिमिलर बॉडी टाइप दैट यू हैड ग्रोइंग अप, कि नो मैटर हाउ मच यू ईट, वो वेट राइट, ऑन होता ही नहीं था। And राइट, it राइट, was, and you used to get very difficult to sort of strengthen your upper body also to hit those long sixes. So राइट।
I'm sure that also plays a very important factor कि इंसान naturally weight put on करता है या नहीं करता. So 100%, 100%. बॉडी टाइप एंड द कल्चर दे कम फ्रॉम, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एटलीस्ट इन इंडिया. क्योंकि एक नॉर्थ इंडियन का कल्चर, एक साउथ इंडियन कल्चर, बहुत डिफरेंस, फूड में भी बहुत डिफरेंस है और उनके अपब्रिंगिंग में भी बहुत डिफरेंस. और बॉडी टाइप तो डेफिनेटली कुछ प्लेयर्स होते हैं जो पुट ऑन नहीं कर पाते हैं. मेरे पास है प्लेयर्स ऐसे, में आई कैन नॉट नेम देम, दे आर प्लेइंग आईपीएल, राइट, बट उनका मेजर प्रॉब्लम है दे आर नॉट एबल टू पुट ऑन मसल, राइट. वो कितना भी खा ले, कुछ भी कर ले, और ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है, इट्स जस्ट दैट उनका मेटाबॉलिज्म वैसा है. मतलब उनका फंक्शनिंग बॉडी का ऐसा है. कोई ऐसा, हमने सारे टेस्ट करा के देख लिए, कोई थायराइड या कोई भी हाइपरथायराइड नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, बट दे आर नॉट एबल टू पुट ऑन मसल, राइट. सो बॉडी टाइप तो डेफिनेटली मैटर करता है. उसके अकॉर्डिंग ही कितना प्रोटीन देना है, कितनी कैलोरीज देनी है, कौन से सप्लीमेंट्स यूज करना है, वो इंपॉर्टेंट रहता है व्हेन इट कम्स टू एथलीट्स. बट व्हाट आई फील व्हेन इट कम्स टू जनरल पॉपुलेशन, जैसे अब हम और आप हैं, उनके लिए इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका डाइट इतना प्रिसाइज, इतना माइन्यूट डिटेल्ड नहीं रहता है. सो दे कैन गो विद द फ्लो. बट प्लेयर्स के लिए 100% उनका बॉडी टाइप इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द कल्चर फ्रॉम दे कम फ्रॉम. And what sort of tips would you give to, say, aspiring athletes, जो say till the age of 19, 20 होते हैं, who probably haven't reached that feat where they're, making very good money to have their own Yeah, chef and maybe say procure a lot of these yeah, food items per se. Right, And at the right, same time, उनकी body भी काफी change हो रही है. right. They might get very frustrated with, not seeing results very quickly. Hmm. And plus at the same time, there are also a lot of myths and a lot of times people tell you कि यार जिम मत जाओ, वे प्रोटीन मत खाओ, etc etc, and they don't have clear idea कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. So what are Right, the right, for people under 20 if you tell them clearly that these two three things are a myth and these two three things you should definitely do. right, right. So, uh, 3 tips जो कोई भी एक ग्रास रूट क्रिकेटर को फॉलो करना चाहिए, वो ये है, एज यू हैव टोल्ड, लाइक अभी आपने बात किया कि एटलीस्ट प्लीज फोकस ऑन योर प्रोटीन इनटेक, ठीक है. इट इज द मोस्ट बेसिक थिंग दैट यू नीड टू डू. डू नॉट वरी अबाउट द फैट्स एंड ऑल द स्टफ, बट एटलीस्ट जो फर्स्ट पॉइंट है, आपको प्रोटीन इनटेक सही रखना है. Hmm. आपका जो भी बॉडी वेट है, आप उससे एटलीस्ट 2 टाइम्स खाओ, बीइंग एन एथलीट, ठीक है. आप कोई भी एज ग्रुप पे बिलोंग करते हो, आप 13, अंडर 13 हो, 18 हो, 20 हो, 25 हो, जो भी है, आपको प्रोटीन इंटेक का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है. मतलब उसको कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. वो नहीं करोगे तो यू वोंट बी एबल टू सक्सीड. मैं तो डायरेक्टली बोल रहा हूँ, क्योंकि आप if you're not eating correct amount of protein intake, like if you're not having correct amount of protein in your diet, you won't feel that much of strength, और आपका मसल ग्रोथ या रिकवरी उतना नहीं होगा. और हमारा गेम में रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप छोटे लेवल पे देखोगे, तो उनको ये लग्जरी नहीं है कि मैं ये सीरीज नहीं खेलूंगा तो चल जाएगा, या वो सीरीज नहीं खेलूंगा तो चल जाएगा. उनके तो बैक टू बैक मैचेस हैं. इन Yeah. इंदौर, इन इंदौर डिवीजन, अभी इसी साल का बात है, 4 बैक टू बैक वनडे मैचेस थे बच्चों के. अब उनके पास ये लग्जरी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि मेरे को इन चारों में परफॉर्म करना है. अगर मैं परफॉर्म नहीं yeah. करूंगा, आई विल बी आउट. मेरे पास ये लग्जरी है कि अच्छा मेरा बॉडी रिकवर नहीं हो रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं एक मैच छोड़, नहीं होने वाला ऐसा. वो छोटे लेवल पे नहीं होगा. सो यू नीड टू मेक श्योर एटलीस्ट आप प्रोटीन कवर कर रहे हो, ताकि ये अगर आपके पास ऐसे बैक टू बैक मैचेस आ रहे हैं या डेज मैचेस आ रहे हैं, तो आपका एनर्जी लॉस नहीं हो, आपका मसल लॉस नहीं हो, फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, प्लीज ये समझो कि विराट कोहली एक लेवल पे जाने के बाद विराट कोहली बनाए. डोंट ट्राई टू कॉपी हिम, और डोंट ट्राई टू कॉपी एनीवन एल्स. योर बॉडी इज टोटली डिफरेंट. इफ ही इज अ वीगन, देयर माइट बी सम रीजन बिहाइंड इट, ठीक है. एथिकल रीजन हो, आई एम नॉट श्योर कि वो क्या उनका रीजन है, बट जरूरी नहीं है कि अगर वो वीगन है तो आपको भी वीगन बनना है. अगर उसने कुछ स्पेसिफिक फूड आइटम छोड़ा है, तो आपको भी छोड़ना है. आपके लिए हो सकता है वो बैकफायर कर जाए, क्योंकि आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है. अगर मैं आपको ये बोलूंगा कि नहीं, यू यू लिविंग इन अ स्मॉल टाउन, और आप वहाँ पे पूरा वीगन डाइट फॉलो करो, कोई पनीर नहीं, कुछ नहीं, यू वोंट बी एबल टू डू इट. आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, राइट. सो डोंट ट्राई टू कॉपी एनीवन एल्स. खुद का डाइट खुद मैनेज करो, अपना प्रोटीन इंटेक, अपना कैलोरी सॉर्ट करो, एंड ओवर द पीरियड प्लीज ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम द राइट सोर्स विच इज देयर ऑन द इंटरनेट, ठीक है. हर किसी को इंस्टाग्राम पे देख के, किसी को भी फॉलो करके करके और वो मत करो कि ये एक चीज खाने से ऐसा हो जाएगा, वो चीज खाने. देयर इज स्पेसिफिकली नो फूड आइटम विच इज गोइंग टू मेक यू ह्यूज और विच इज गोइंग टू मेक यू लूज फैट. एक Yeah. फूड आइटम, एक सिंगल फूड आइटम से कभी कुछ नहीं होता. तो ऐसे फालतू की रील्स देखना, या पता नहीं वो जिम वाले अंकल नहीं, वो कि अरे 4 बादाम 2 काजू,
दो खजूर खाओ और मत करो भाई, सब भाई प्रॉब्लमेटिक वो चीज है। वाले भी तो होते हैं ना, वो सुबह क्या नींबू डाल के गर्म पानी नींबू में डाल पियो, के, या शहद डाल एप्पल के एप्पल अलग। साइडर विनेगर। वर्स्ट थिंग, एप्पल साइडर विनेगर क्या घटिया टेस्ट होता है यार, क्यों मतलब अपने आप को टॉर्चर दे रहे हो? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, सभी के लिए फिटनेस इज वेरी इजी, बट हमारे दिमाग में क्या है ना, अगर मैं कोई भी प्लेयर को ये बोलूं कि भाई तू रोटी दाल राइस खा के भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बोलता है मैं मान नहीं सकता। डाइट का मतलब मैंने आपको पैसे इसलिए दे कि आप मेरे को ये खिलाओ वो खिलाओ, ब्रोकली खिलाओ, लेट्स, मतलब भाई जरूरत एवोकाडो नहीं है, खिलाओ। वाइट आवाकाडो खिलाओ। अबे तू तू होम तेरा होम टाउन, मतलब यू कम फ्रॉम अ स्मॉल होम टाउन लाइक टाउन, एंड यू सेइंग यू नीड टू हैव अ ब्रेड एंड एवोकाडो रेगुलरली, भाई पॉसिबल नहीं है तेरे लिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बेसन चिला खा, मस्त रहे, हो जाएगा उससे काम ब्रेकफास्ट में। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उसमें से जो बेस्ट पिक कर पाओ फूड आइटम वो पिक करो। डोंट ट्राई टू कॉपी एनीवन एल्स। एंड जो एक बहुत मेजर, मे बी आई मीन ये जनरल पॉपुलेशन में भी है, ये प्लेयर्स में भी है, कि वो क्या करते हैं ना, अपना मील टाइमिंग पे फोकस नहीं करते हैं। एंड आई फील कि फॉर द प्लेयर्स, the second most the first most important thing is protein and the calories, but the second most important thing is their meal timings, at least for the athletes, क्योंकि अगर आपने सही टाइम पे सही फूड नहीं लिया है तो आप आगे जो एनर्जी एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके गेम में वो नहीं मिलेगा, राइट? तो ट्राई टू हैव, लेट्स से 4 to 5 मील्स इन अ डे, जिसमें हर मील में कुछ अमाउंट प्रोटीन हो और जिसमें हर मील में कुछ अमाउंट कार्बोहाइड्रेट हो। अब वो कुछ का डेफिनेशन में इसलिए नहीं बता सकता अभी, क्योंकि सबका कैलोरी इंटेक इज गोइंग टू बी डिफरेंट, सबका गोल या इज गोइंग टू बी डिफरेंट, राइट? somebody Yeah. wants to lose fat, somebody wants to gain muscles, तो उनका वो रेशियो डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। बट द रेशियो विच नेवर चेंजेस कि आपको 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट तो प्रोटीन खाना ही चाहिए, ये मतलब होना ही चाहिए। लेकिन अगेन, इफ यू आर अ वेजिटेरियन एंड इफ यू कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे दाल राइस रोटी ही रेगुलर रहता है, डोंट डायरेक्टली जम्प टू 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे, क्योंकि वो आपको डिस्कम्फर्ट फील कराएगा, कॉन्स्टिपेटेड फील करोगे, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में इतना प्रोटीन नहीं खाया। फॉर पीपल लाइक देम हुआ वेजिटेरियन और जिनका बहुत सिंपल फूड रहा है और कोई प्रोटीन सोर्स नहीं रहा है, स्टार्ट विद 1 ग्राम, फिर धीरे धीरे ओवर द पीरियड जंप टू 2 ग्राम। And if you could एक tell us what are these sources of protein for vegetarians also, फॉर right? मैंने ये वेजिटेरियंस, बहुत ओके, देखा है भाई, vegetarians जो there's so many of them who come and approach me and say मैं मीट नहीं खाता, अंडा नहीं खाता, वगैरह वगैरह, and at one point they get demotivated also कि यार राइट राइट पनीर भी मैं या इतना ही खा सकता हूँ। So what would be these sources of protein for vegetarians? राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप वेजिटेरियन हो, इफ यू फीलिंग दैट यू आर यू नो यू वोंट बी एबल टू गेन मसल और आपको अंडा और मछली और चिकन खाना ही पड़ेगा, सब गलत है। बीइंग अ वेजिटेरियन, you can build the same amount of strength and muscles when compared to a non-vegetarian. Exactly the same amount of strength and muscles. When it comes to protein sources, yes, there are less protein sources when compared to a non-vegetarian, but इसका मतलब ये नहीं है कि आप complete ही ना कर पाओ। For example, I am a vegetarian. I'm a complete vegetarian. मैं अंडा भी नहीं खाता हूँ, ठीक है? And there are players जो नहीं खाते हैं कुछ भी. So for them, what I do is, paneer is a very good option. Milk, curd, I mean anything which is coming from dairy is a good option for them. Soya chunks is a great option. Soya chunks has been demonized from years कि भैया मेल हो तो सोया चंक्स खाना ही मत, वरना मैन एस्ट्रोजन बूब्स, एस्ट्रोजन में आता है। एस्ट्रोजन मैन बूब्स आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मतलब इतना फालतू का, अगेन सही में इंस्टाग्राम भाई, के गुरुजी है, इंस्टाग्राम के गुरुजी है सब। सो गलत फॉर मार्केटिंग हो गया उनका। गलत so for vegetarians, soya chunks is a really good source of protein, right? And do not hesitate, if you're not able to complete protein from your food, then supplement it from the whey protein. There is absolutely no harm in taking supplements like whey protein. प्रॉब्लम क्या आती है ना, आप कोई डॉक्टर को भी बोलोगे तो वो भी मना करेगा कि वे प्रोटीन मत। या प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इंडिया में डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा है। मैं जो भी प्रोडक्ट आप बोलोगे ना, मैं उसका डुप्लीकेट प्रोडक्ट आपको दिला सकता हूँ, राइट? सो प्रॉब्लम ये है, मतलब मैं दिलाऊंगा नहीं बट बता रहा हूँ। ऐसा मत सोचना कि चलो इनसे डुप्लीकेट लेके धंधा शुरू कर दो, ऐसा नहीं होने वाला। तो प्रॉब्लम ये है कि इतनी ज्यादा डुप्लीकेसी है कि लोगों को पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत। अब आप जब गलत प्रोडक्ट खरीदते हो और उसमें आपको प्रोटीन की जगह मे बी सम चीप इंग्रेडिएंट्स आर देयर, डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी नहीं आएगा और वो आपकी बॉडी पे, it's going to be harmful for your body because या you don't know what you're eating. So if you take whey protein from a good brand, okay, and उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर कर रहे हो, दैट मीन्स कि डुप्लीकेसी का चांस ही नहीं है, राइट? ऑर्डर द प्रोटीन फ्रॉम देयर ऑफिशियल वेबसाइट एंड इफ यू आर टेकिंग वे प्रोटीन, इट्स कंप्लीटली फाइन।
It's fine for a 5 year old kid also, and it's fine for a 65, 70-year-old man or a woman also, right? It's absolutely fine. उसके दो चीजें हैं जो आपको बस पता करना है. एक तो ये कि आपको ऑलरेडी कोई यूरिक एसिड प्रॉब्लम या कोई किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं. इफ यू आर अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग, इट इज कंप्लीटली फाइन एंड अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन. ठीक है. वे प्रोटीन होता क्या है? वे प्रोटीन बहुत बेसिक चीज है. हमारे घर पे हम वे प्रोटीन फेंक देते हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ. क्योंकि लाइक वे प्रोटीन क्या है? जब आप दूध को फाड़ के या जो भी प्रोसेस करके आप पनीर बनाते हो, तो द वाटर विच कम्स अप, Yeah, जिसको हम फेंक देते हैं, byproduct. दैट इज वे. ओके, दैट इज वे. तो उसी को ये कंपनी इन पाउडर फॉर्म्स हाइड्रोलाइज करके दे रीपैकेज इट एंड गिव अस दी अच्छे उसमें फ्लेवर्स डाल के देते हैं. इट इज सेफ टू कंज्यूम, राइट? सो उसका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है फॉर अ वेजिटेरियन. अगर आप घर में ये ढूंढ रहे हो कि मैं कोई शेक बना लूंगा घर में प्रोटीन का, तो नहीं बनने वाला. प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी. गो इन द मार्केट एंड बाय अ गुड सप्लीमेंट. अच्छे ब्रांड का लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. And that brings me to another interesting question, right? मतलब काफी like one thing you clarified कि there is no problem कि कोई एज पे कोई भी supplement ले सकता है if their body needs it. At the same time, I wanted to ask you about something जो हम corporate world में काफी देखते हैं, like within in our offices, etc. People who are trying to lose weight, who are not necessarily putting in the effort of sweating it out in the gym or whatever it is, and they all of a sudden start doing things like keto and intermittent fasting. या अभी एक नया ये भी आया है भाई, क्या ये ओमैड, वन मील अ डे वन और मील पर डे. समथिंग. हाँ हाँ, वन तो मील डे. लाइक yeah, what are your thoughts on like these dieting fads? Is it हाँ हाँ. sustainable? Number one, does it have repercussions or implications on your body? Tell us something about that. Basically, what I feel is, if you're following any X named diet, you won't be able to sustain it. ठीक है. कोई भी आप ले लो, कीटो ले लो, इंटरमिटेंट फास्टिंग ले लो, ओमैड ले लो, देयर इज फ्रूट डाइट, वाटर डाइट, व्हाट नॉट, आई मीन सिर्फ लिक्विड डाइट. जितनी भी चीजें हैं, अगर आपने किसी भी वर्ड के आगे डाइट लगा दिया है, दैट मीन्स इट इज नॉट गोइंग टू बी सस्टेनेबल फॉर यू. बिकॉज आप जब डाइट वर्ड यूज कर रहे हो ना, तो आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हो, अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो कि मैं कुछ डिफिकल्ट करने जा रहा हूँ. क्योंकि डाइट हमेशा, डाइटिंग कभी भी आसान नहीं मानी गई, राइट? जब भी डाइट की बारी आती है तो ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट होगा. तो आई फील फर्स्ट ऑफ ऑल यू लाइक, किसी भी इंसान अगर कोई फैट लॉस करना चाह रहा है, क्योंकि ऑल दीज डाइट्स आर मेनली मेड फॉर द फैट लॉस, जितनी भी आपने डाइट्स का नाम दिया, एंड ये Yeah. सारी फैट डाइट जो है वो फैट लॉस में ही काम आती है. If you're following such kind of diet, following such kind of diet, first you won't be able to sustain it, जैसे आपने बोला. क्योंकि आप कितने, बीइंग इंडियन, जो पूरा 20, 25, 30 साल रोटी और राइस खाकर बड़ा हुआ है, और आपको ये बोलूं मैं कल से कि आपको कीटो करना है, देयर विल बी नो कार्ब्स, एंड यू नीड टू डू इट फॉर द होल लाइफ. इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? सही में. अब लोग बोलेंगे कि अच्छा, किसने बोला होल लाइफ के लिए करने का? मैं तो 3 महीने करूंगी और मैं छोड़ दूंगी, फिर मैं वापस नॉर्मल. द मोमेंट यू गेट इन टू योर ओन लाइफ स्टाइल अगेन, 3 महीने बाद वो Yeah, वापस they, फट से यू विल रीगेन. करके देख लेना. और इसका बहुत बेसिक एग्जांपल है, इट्स फनी बट यू विल कम टू नो कि हाँ यार ऐसा होता है. जितनी भी, लाइक नथिंग अगेंस्ट एनीवन, ओके, नथिंग अगेंस्ट एनीवन, जितनी भी इंडिया में 22 से लेके 27, 28 ईयर्स ओल्ड लड़कियां हैं, और जिनकी शादी होने वाली है 3 महीने बाद, उनको लगता है कि मैं 3 महीने में कैटरीना कैफ बन जाऊं. ठीक है. और उसके लिए वो करते हैं ये उल्टी सीधी डाइट. आप किसी भी लड़की को देखना, शादी के जस्ट बाद आपको बहुत मोटी दिखेगी, क्योंकि उसने पहले कोई डाइट करी थी पतला होने के लिए शादी में, और उसके बाद वो डबल ट्रिपल मोटी हो गई. और उसके बाद बहाने सुनो आप, अरे शादी के बाद तो सब मोटे हो ही जाते अरे हैं. अपने अपने इंडियन उसमें बोलते हैं ना कि भाई इट्स अ साइन ऑफ हैप्पीनेस. हैप्पीनेस, राइट? आई मीन बुलशिट. और अपनी चीजों को कवर कर रहे हैं कि नहीं, हम तो खाते पीते घर के हैं, और शादी के बाद या में क्या है, क्या ही होगा. आई मीन ऑल, लाइक डू नॉट फॉलो एनी काइंड ऑफ डाइट, एंड ऑल दीज आर गोइंग टू गिव यू शॉर्ट टर्म रिजल्ट, बट लॉन्ग टर्म में तो आपकी 12 बजने वाली है. आप बार बार गेन करते रहोगे और लाइफ निकल जाएगी और इसी सर्कल में घूमते रहोगे, And we राइट? just clarified to our viewers कि सूरज ने पहले ही बोल दिया, no offense to anybody. हाँ, राइट, प्लीज. पता चल रहा बाद में है कमेंट कमेंट लिख के बोलना मत कुछ नहीं. पता चल रहा है जितने भी मेरी फीमेल क्लाइंट्स है सब भागे, बोले क्या बोल रहे हो सर आप, मेरे को नहीं रहना आपके साथ. But तो no, आई I मीन, think it's just like some truth bombs that you're dropping. तो मतलब हाँ. I think ये भी सुनना जरूरी है लोगों को. तो हमने भी पता है इस चीज का फायदा उठाने के लिए व्हाट वी डिड इज, हमने हमारी वेबसाइट पे डाल दिया था, मतलब अभी भी डाला हुआ है एक्चुअली, बट हम सस्टेनेबल वे में कराते हैं.
उसमें डाल दिया हमने, एक हमारा प्रोग्राम है वेडिंग रेडी करके, कि आपकी शादी होने वाली है, प्लान ले लो आप, आपको हम विल मेक यू लूज फैट एंड व्हाटएवर थिंग इज इट। बट जब वो कोई प्लान लेता भी है, कोई डिस्कस करता भी, तो हम क्लियरली बोलते हैं कि प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कि मैं आपका 20 किलो कम करा दूंगा 2 महीने में, या 30 किलो कम करा दूंगा। यू विल बी इन अ बेटर शेप जहां से आप हो, एंड आई कैन मेक श्योर दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेन इट बैक, जितना भी आपने लूज करा है। बट डू नॉट कम टू मी टू लूज 20 kgs इन 2 months और 3 months। वो नहीं है मेरे लिए, मैं आई वोंट बी एबल टू डू इट, क्योंकि आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद करने के बाद मुझे गाली दोगे कि उसने क्या कराया कि वापस से सारा वेट आ गया। आई डोंट वांट टू डू इट। मेरे रिजल्ट स्लो हैं, बट इट इज गोइंग टू बी सस्टेनेबल फॉर योर होल लाइफ। कभी वापस गेन नहीं करोगे। Good things take time, right? 100%, 100%। Awesome. So, Chaitanya, any more questions you have before we get Yeah, to I think before we let Suraj go, right? Like I think एक छोटा सा हमने rapid fire एक सोचा है, सूरज को 2-3 quick fire questions पूछेंगे and we'll get his take on this. Chaitanya, before moving into this round, I just really wanted to clear out one thing जो मैं usually सभी को बोलता हूँ, because मुझे देख के ना, या नहीं सिर्फ मुझे देख के नहीं, क्योंकि अब बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ये क्वेश्चन बोला था कि हाउ डिड यू लैंडेड इन दिस फील्ड, और इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं Yeah. कैसे एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट बन सकता हूँ। और मैं मतलब पॉडकास्ट पे मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि डोंट गो फॉर फैंसी सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशंस आर नीडेड, डिग्रीज आर नीडेड, कि आपको कोई आईपीएल टीम साथ काम करना है या कोई भी टीम साथ काम करना है, तो आपको डेफिनेटली डिग्रीज लगेंगी, राइट। बट कोई भी प्लेयर को या कोई भी इंसान को आपकी डिग्री या सर्टिफिकेशन से फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपका क्लाइंट है, उसको सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ेगा कि आपकी सर्विसेज कितनी अच्छी है और आप उसको रिजल्ट दे पा रहे हो कि नहीं। उसने आपको हायर किया है कि वो फूड रिलेटेड सारे उसके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट हो जाए। अगर आप उसको सॉर्ट कर पा रहे हो, you will be able to sustain all your clients, बार बार renew भी होंगे, and you will be able to keep on adding more clients. And when it comes to working with athletes, एक बात का प्लीज ध्यान रखना, you can get into the field, like मैं आवेश के थ्रू आया, राइट। और मुझे पहले शुरुआत के कुछ महीने लगता था कि सिर्फ प्लेयर्स से अगर मैं कांटेक्ट अच्छा रखूंगा तो मुझे और रेफरल्स मिलेंगे, क्योंकि मेरा काम तो अच्छा है। लेकिन यू वोंट बिलीव, जितने ये 15 प्लेयर्स मेरे पास हैं, डेफिनेटली इट्स वर्ड ऑफ माउथ, बट जितने 15 प्लेयर मेरे पास हैं, एक भी इनमें से कोई डायरेक्ट प्लेयर से नहीं आया, राइट। आई मीन आवेश वेंकटेश अय्यर से आया। उसके बाद इफ यू सी ईशांत शर्मा, ईशांत शर्मा जो है, मुझे दिल्ली में पेस्टाप करके एकेडमी है, आयुष सर रन करते हैं, उनके प्लेयर साथ मैं काम करता था। उन्होंने देखा वो ईशांत शर्मा के साथ काम करते थे, उन्होंने मुझे कांटेक्ट करा, एंड देन आई गॉट इनटू टच विद ईशांत शर्मा। सेम गोज विद नीतीश रेड्डी। नीतीश रेड्डी भी मुझे कोई एक एंकर जो क्रिकेट का एंकर है, जय शर्मा, उन्होंने मुझे लाके दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा काम अच्छा था, और उन्होंने देखा कि हाँ ये इन लोगों के साथ काम कर रहा है, रिजल्ट्स हैं, सब कुछ अच्छा है, तो मुझे शायद नीतीश से भी बात करना चाहिए फॉर द सेम, राइट। सो इफ यू रियली वांट टू मेक बिग इन दिस इंडस्ट्री, प्लीज मेक श्योर कि आप सिर्फ और सिर्फ ये सोच के आ रहे हो कि मेरा काम अच्छा है और मैं प्लेयर को अच्छा दूंगा तो प्लेयर्स मुझे देंगे, वो नहीं होने वाला, ठीक है। और उसमें प्लेयर से गलती नहीं है, क्योंकि कोई प्लेयर जाके आपको हर जगह ये नहीं बोलेगा कि सूरज मेरा, ऐसा कोई बोर्ड लेके नहीं चलेगा कि सूरज मेरा डाइटिशियन, नहीं होने वाला है ऐसा। आपको उनका जो इनर सर्कल है उनसे प्लीज, आई मीन थोड़ा कांटेक्ट बना के रखो। अगर इनर सर्कल से कांटेक्ट बना हुआ है तो आप डेफिनेटली, अगर आपका काम अच्छा, अगर काम अच्छा नहीं है तो आप कितना ही कांटेक्ट बना लो, 2 महीना काम करोगे, 3 महीने गाली सुनोगे, कुछ नहीं होने वाला। काम तो अच्छा होना ही चाहिए, यू नीड टू हैव Yeah. गुड ग्रिप अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, राइट। बट एट द सेम टाइम आप उनके क्लोज वन से थोड़ा सा कांटेक्ट बना के रखो, राइट। आई मीन ये अरशद और अरशद खान, कुमार कार्तिक जो मैं प्लेयर्स बता रहा था, ये भी मेरे को एक सोशल मीडिया मैनेजर के थ्रू मिला है, राइट। तो आप समझ नहीं सकते कि कहाँ से कोई लीड आ जाएगा आपका, ठीक है। आउट ऑफ 15 प्लेयर्स शायद ही 2-3 प्लेयर्स मेरे रेफरल होंगे, बाकी सब अलग अलग। आई ऑल्सो डोंट नो कि कहाँ से कौन आया, राइट। सो इफ यू रियली वांट टू मेक इट बिग, प्लीज मेक श्योर कि आपका काम तो टॉप नॉच होना ही चाहिए। आपको यू नीड टू बी अपग्रेडेड एवरी डे, Yeah. एवरी like जो भी नया मार्केट में सप्लीमेंट आ रहा है या स्टडीज आ रही है, यू नीड टू कीप ऑन रीडिंग देम, ताकि आप अपने प्लेयर्स को बेस्ट दे पाओ। एट द सेम टाइम प्लीज मेक श्योर यू आर मेकिंग कॉन्टैक्ट्स। Awesome. I think that's some great advice, irrespective of what field you're in, right? Like, मतलब पहले you should be great at your own work. Then I think you should be great at networking as well, and like building those bridges, right? Those relationships. मतलब पता नहीं कहाँ से क्या opportunity आ सकती है. एंड इफ तो यू आर यार, ऑनेस्ट चैतन्य भाई, इफ यू आर ऑनेस्ट विद योर वर्क, वो आ ही जाएगा। अगर Correct. मेरे मन में ये रहेगा ना कि मैं
बस ये क्लाइंट को एक बार ले लूं उसके बाद तो मैं देखूंगा, कभी नहीं होगा। मैं इफ आई एम वर्किंग विद 15 क्लाइंट्स आई मेक श्योर कि मैं उनको इक्वल हूँ, कोई भी लेवल पे खेल रहा हो यार। आज मतलब ईशान भाई तो लेजेंड है हमारे इंडिया टीम, Of course. 100 टेस्ट मैच खेला है उन्होंने। और सेम गोज विद वैभव सूर्यवंशी जो अभी आ ही रहा है, राइट। अब अगर मैं ये बोलूं कि अरे वैभव के पास तो बहुत सारे साल है, मैं देख लूंगा, उस पर कम टाइम दूं, और ईशान भाई को, और इट डजंट वर्क दैट वे। Yeah, कितना yeah. भी बड़ा प्लेयर हो, कैसा भी हो, यू नीड टू गिव अटेंशन टू ईच एंड एवरी प्लेयर, और सेम काइंड ऑफ अटेंशन। तो नियत अच्छी तो सब बढ़िया ही होता है जितने में। And after all, these players are also with you for a reason, right? उनको भी समझ आ रहा है that you're putting in that work to deliver those top quality services to them. तो I think वो वही है, मतलब players भी आपको favor करने के लिए they will not stick around with you. बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप किसी से भी बात कर लेना, कोई भी कितना ही आपका अच्छा दोस्त हो, अगर आपका काम अच्छा नहीं है तो वो क्यों ही फेवर करेगा यार। यू नीड टू बी 100%. रियली रियली गुड एट व्हाट यू आर डूइंग। I think let's quickly go through that rapid यस fire यस round यस as well. यस यस, We have लेट्स like डू इट। 2-3 questions for you. Quick one, Suraj. ठीक है? या Uh, if you can tell our audience what is like one food item which you think is very overrated for fitness, मतलब बहुत marketing हुआ हुआ है इसका, but value कुछ नहीं है वो खाने में. मैं तो बहुत बता दूं, बट आई थिंक पीनट बटर इज वन ऑफ देम। Nice, nice. पीनट बटर एवोकाडो, बकवास चीजें सब। हाँ। What is like the weirdest, trickiest diet request you've ever gotten? डाइट रिक्वेस्ट, आई मीन इट माइट नॉट बी वेरी वियर्ड फॉर यू गाइस, बट इट इज फॉर मी, क्योंकि मुझे पता है दैट डजंट वर्क। इट इज डिटॉक्स डाइट। सर मेरे को तो डिटॉक्स करना है। बॉस, तेरा 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 लीवर है तेरे पास, तेरे शरीर में डिटॉक्स करने के लिए, तू क्यों इतना लोड ले रहा है डिटॉक्स का? मेरे को तो पूरी क्लिनजिंग करनी है। अरे नहीं होता ऐसा, कहीं मैं रगड़ दूं क्या अंदर जाके, उसमें सर्फ डाल दूं या क्या करूं? नहीं होता है यार। ये कौन लोग हैं जो करा रहे हैं आपको? और भाई इट्स यही वेरी यही इजी। सब कंटेंट तो बिकता है इंस्टाग्राम, यूट्यूब और इस सब पे. तभी मेरे फॉलोअर्स कम है यार, तभी मेरे फॉलोअर्स कम है। मैं कोई बेच कोई ही नहीं पाता ये हूँ। वीडियो के बाद आई थिंक ये पहुंचने वाला है. यस यस, 100%। Cool. Before we let you go, one last universal fitness tip, simple, something that people can follow in their day-to-day life. Well, it could be someone like maybe our parents, our friends, people who are doing corporate jobs, small thing that they can do, which can make Right. a difference over a period of time. Yes. Like very simple thing, very simple. Fitness is very simple. Eat right food and walk as much as you can. If you cannot do any workout, just go for a walk. If you're walking for 45 hours or maybe 45 minutes or 1 hour, it is going to bring huge changes in your life. Okay. तो वॉकिंग इज वेरी अंडररेटेड। अब थोड़ा लोगों को समझ में आया है और थोड़ा ज्यादा है, Mhm. बट वॉकिंग इसलिए क्योंकि इट्स इजी एंड कैन बी डन एनी टाइम एनी डे, राइट। उसके लिए वो कोई वर्कआउट या जिम जाने की जरूरत नहीं। सो वॉक मोर and try to eat normal Indian food. Yes, go out and eat your favorite food, but you should always know about your portion size. कब रुकना है, अगर वो कंट्रोल आ गया तो फिर तो दुनिया जीत लिया आपने। And And you obviously should never skip breakfast also. ये काफी लोग करते हैं भाई हमारे मतलब सर्कल्स में और ऑफिस में Intermittent. बहुत. intermittent fasting. I mean, see, I won't say कि don't skip your breakfast. It's again, Angad bhai, depends what you really like to do. अब I mean, अगर आपका रूटीन ऐसा है, अब मैं आपको आईपीएल में प्लेयर्स ब्रेकफास्ट बहुत कम करते हैं, एंड यू ऑल नो द रीजन। आई मीन उनका रात का मैच है, रात को लेट Yeah. सोएंगे, उठेंगे कब, ब्रेकफास्ट कब करेंगे, नहीं हो पाता है वो चीज। सो यू नीड टू सी कि आपका रूटीन क्या है। अगर आपका रूटीन अलाउ करता है तो प्लीज डू द ब्रेकफास्ट, नहीं करता है तो ठीक है, लेकिन अगर अलाउ करते तो प्लीज डू इट। ऐसे इंटरमीडिएट फास्टिंग के चक्कर में भूखे मत रहो। अरे सूरज, ये अंगद अपने अपने दर्द से बता रहे हैं कि ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई को हमारे चाहिए उठते ही आधे घंटे में ब्रेकफास्ट. तो मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। कैन नॉट फंक्शन विदाउट ब्रेकफास्ट, चाहिए ही चाहिए। Awesome, awesome, cool. That was quite a fun chat, Suraj. Thanks a ton for coming this. I think Thank you so anyone much, who guys. wants to follow Suraj, check him out on Instagram, on YouTube. We'll share his links in the description box. And yeah, if you enjoyed this chat, share it with your friends, share it with upcoming athletes, share it with people, whoever's interested in getting into the whole nutrition space. And yeah, Suraj, if you want to tell people where they can find you, how they can get in touch with you, please, the floor is yours. So, मैंने थोड़ा सा, I mean, you all know who I am now because of this podcast. Thank you so much, Chaitanya bhai and Angad bhai. And my Instagram handle is thecalorieman_. Or you can find me on Instagram and you can DM us for any of your query or anything. I am not going to, like, I'm not someone who's going to charge you on day one. Don't worry about it. कोई normal query है, please feel free to DM us and we will make sure कि we are helping you out.
भाई चैतन्य इसका अलग शॉट बना के डालना कि ही इज नॉट गोइंग टू चार्ज ऑन द फर्स्ट कंसल्टेशन। आई थिंक वहीं से किक स्टार्ट होगा बिजनेस का बहुत ज्यादा। For sure, for But sure. Suraj, thank you so much. It was informative, Thank you, not thank you, only for Angad the bhai. rest of the audience, but for us also. There's so many things we've learned, and we hope that whatever you've told us influences a lot of people across the country and the world. So thank you so much once again, and yeah. Thank you so much. Thank you, And yeah, Angad we bhai. Thank hope you so like much. you get more and more cricketers on your portfolio, more athletes across the world. And yeah, wish you See, all thank you so the much, but success. मैं ऐसे मतलब I feel I'm confident. Like I really feel, I will be able to crack the thing in the near future because हमें I भूल I जाना, I'm remember? confident enough. मुझे पता है कि क्या हो रहा है इस फील्ड में। ऐसा ऐसा एटीट्यूड नहीं है, बट हाँ ऐसा हो कि अरे वाह खुद की तारीफ कर रहा है वाली बात नहीं है। No, बट but you gotta I'm have that confident about confidence, that. right? या आई एम कॉन्फिडेंट, मैं मेरा काम है, Yeah, मैं क्रैक कर लूंगा। आप अपना come देखो, मैं on. देख लूंगा मेरा। Bhai, and you never forget the first few podcasts that you go on. So भूल मत जाना। नेवर 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 अंगद भाई, नेवर नेवर। अगर Yeah, कुछ भी, great. if you want any kind of help from me, any fitness help, please do let me know. 100% Awesome, happy to awesome, help। Thank you, means a lot. awesome. Thanks a ton, Suraj. For और अगर anyone. इंस्टाग्राम पे किसी और फिटनेस इन्फ्लुएंसर को आपने फॉलो किया हो, मैंने देखा है, तो फिर आप देखो। फिर तो मैं सब ये अच्छा नहीं होगा, ध्यान रखना बस। I कुछ guarantee भी। full loyalty. Chalo, Okay. awesome. That's Okay. Yeah. been a fun conversation. I think anyone who's watched this, like this video and subscribe to Ball and Banter. And yeah, get in touch with Suraj for more fitness tips. All right. Thank you, Chaitanya bhai. Toodles. Okay. Bye. Bye bye. आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।